Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the presentation of hydraulic engineering. In this presentation, we will present about a complex engineering problem. This complex engineering problem basically provides us Ikra National University Department of Civil Engineering. Complex engineering problem provide us in every subject for every student. It is necessary for every student to submit it on time. Okay. Course title hydraulic engineering. Course instructor engineer Fawad Ahmad. Basically, engineer Fawad Ahmad provides three statements of the complex engineering problem. The first one statement of the problem is the construction of Damar Basha Dam project. The second one problem statement is the project area of Sindh Biraj project. And the third one statement of the problem is the construction of Kachi Canal project started in 2002 in Punjab and Balochistan. Okay, so I have selected problem statement number 1, which is based on the construction of Damar Basha Dam project will begin in couple of weeks on Indus River near Chilas, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit Baltistan. Being the student of undergraduate civil engineering program, you are required to prepare a video recorded presentation by keeping in mind the following critical question. The first question is describe the salient technical aspect of Damar Basha Dam project that will make it unique. The second question is explain the infrequently encountered issues related to Damar Basha Dam project. The third question is discuss the role of diverse group of stakeholders involved in Damar Basha Dam project with widely varying needs. The fourth one question is enlist the benefit in detail that Pakistan will get from Damar Basha Dam project after the completion of its construction. The last question is critically analyze the significant consequences in a range of contexts. For example, environmental and socio-economic after commissioning of Damar Basha Dam project. Okay. So every student needed to keep in mind the following critical question and prepare a video recorded presentation. Okay. So I have prepared this presentation. Let us move toward my presentation. Damar Basha Dam project, Department of Civil Engineering, Ikra National University, Peshawar. Submitted to engineer Fawad Ahmad. Submitted by basically this presentation I have prepared in group form. Our group have two members. First one is I am Ahmad Musa and another one is my class fellow Muhammad Tayyib. Okay. Currently we are in 6th semester section B, batch 2018 to 2022. Okay, this is the project area. In this area, Damar Basha Dam will be constructed. Basically, there are two mountains here. Between these two mountains, Damar Basha Dam will be constructed. Now we are coming toward the table of content of my presentation. First, I will explain the introduction of this presentation. It means Damar Basha Dam project. Then we will explain location and salient feature of Damar Basha Dam, what make it unique, encountered issue related to dam, infrequently encountered issue, stakeholder involved, resettlement plan, environmental management plan, and benefit of Damar Basha Dam project, significant consequences of dam. Okay. So first हम आती है लोकेशन की तरफ कि what is the location of this project. Damar Basha Dam project is proposed to be located in the river Indus River 315 km upstream of Tarbela Dam site, about 180 km below the town of Gilgit and about 40 km downstream Chilas. The district headquarters are Damar in Gilgit Baltistan. Okay, this is you can see here in this picture. This is the map of Damar Basha Dam project. Okay, you can see here this is the Damar Basha Dam project area and Tarbela Dam is located 315 km about upstream side of Tarbela Dam. Okay, so अब हम आते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह है, ये डैम जो है कहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर इसमें कौन कौन सी इशूज सामने आ गए. ठीक है, तो वन बाय वन अब वो हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी वसाइल का शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है. इंडिया की तरफ से जो दरिया आ रही है पाकिस्तान की तरफ, इंडिया मुसलसल इस पर डैम बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान
के हुक्मरान जो है वो माजी में मुख्तलिफ मसलों का शिकार रही और अयूब खान के दौर में तामीर होने वाले दो बड़े डैम जो कि मंगला डैम और तरबेला डैम, इसके बाद पाकिस्तान में जो है कोई बड़ा डैम तामीर ना हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से बिजली की कमी का शिकार हुआ और लोड शेडिंग हमारा मुकद्दर रहा। कालाबाग डैम का मंसूबा सियासत का नज़र हुआ और तामीर न कर सका। अगर ये डैम बन जाता तो पाकिस्तान की काफ़ी मसाइल कम हो सकती थी। हालांकि इस डैम की तामीर न होने के बावजूद इस मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन आज हम दियामिर बाशा डैम के प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। फ़ौरन काम का आगाज़ क्यों न हो सका, कौन कौन सी रुकावट आ गई थी और इस डैम की फ़वाइद के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दियामिर बाशा डैम की तामीर का मंसूबा पहली मरतबा 1980 की दहाई के आगाज़ में ज़ेर गौर आया। दियामिर बाशा डैम का मंसूबा कई दहाइयों से ज़ेर गौर है। वापडा ज़राए के मुताबिक इस डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि 2005 से 2008 के दरमियान दोबारा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिज़ाइन पर काम हुआ था। 2008 में जो कौमी तसादी कौंसल है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें चारों सूबों और वफाक की नुमाइंदगी होती है, इससे इस डैम की तामीर का बाकायदा इजाज़त दी। अच्छा, और इसको ऐसा मंसूबा करार दिया जिस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। इस डैम के प्रोजेक्ट का एक से ज़्यादा मरतबा सरकारी सतह पर इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हो चुकी है, जिसमें इस दौर के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो है उन्होंने शिरकत की है। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले इफ्तिताह 1998 में इस वक्त की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट का दोबारा ऐलान सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। इस मौका पर इस वक्त की वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने एक बार फिर इस डैम का इफ्तिताह किया, जबकि दियामिर बाशा डैम एक और इफ्तिताह 2011 में पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत में इस वक्त की वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। अब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत आया है, वज़ीर आज़म इमरान खान आया है, तो इस डैम पर बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस प्रोजेक्ट पर स्पेशल फोकस है। वापडा ज़राए के मुताबिक 2008 में इस डैम की लागत जो है वो 12 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 15 अरब डॉलर के करीब हो चुकी है। इस रकम को पाकिस्तान अपने वसाइल से फराहम नहीं कर सकता था, इसलिए तवक्को थी कि आलमी इदारे जो है जैसा कि वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आगा खान नेटवर्क ये सरमाया फराहम करेंगे। मगर जो ही ये मंसूबा शुरू हुआ, इस मंसूबे के साथ इंडिया ने मंसूबे पर एतराज़ात उठा दी। दियामिर बाशा डैम का बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में तामीर किया जाएगा और इंडिया तवील मुद्दत से गिलगित बल्तिस्तान अपनी मलकियत का दावा चला रहा है। इंडिया के मुखालिफत पर आलमी इदारों ने सरमायाकारी रोक दी गई। ताहम इस वक्त मकामी मुतासिरीन ने रकूब मिलने की तस्दीक नहीं की थी। 2016 में इस दौर की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए माशी जो पैकेज है उसको मंजूर कर लिया और हुक्म दिया कि 2017 के अख्तिताम से पहले इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाए। 2017 में इस मंसूबे को चीन के साथ सीपेक में शामिल करने की बात हुई थी। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, मगर बाद में इस टेंडर को मनसूख कर दिया क्योंकि चीन जो है वो चीन की बहुत सख्त शराइत थी इस सीपेक के साथ अटैच करने पर, वो पाकिस्तान को काबिल कबूल न थी। इस वजह से सीपेक में शामिल न हो सका। ये डैम पाकिस्तान की शमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान और केपीके की सरहदी इलाका बाशा में तामीर करना है। इसका कुछ हिस्सा केपीके के इलाका कोहिस्तान और कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में आता है।
इस वजह से डैम का नाम दयामिर बाशा डैम करार दिया गया। ये डैम दरियाई सिंध पर तामीर किया जाएगा और वापडा के मुताबिक इससे 14 स्पेलवे तामीर की जाएंगी और 8.1 मिलियन एकड़ फीट वाटर की स्टोरेज होगी। अच्छा, उसके साथ साथ इस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वापडा के मुताबिक न सिर्फ केपीके के इलाके डेर इस्माइल खान और टांग का जो इलाका है उसका 6 लाख एकड़ रकबा बंजर है, वो काबिल काश्त हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डैम। बल्कि मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट से 3 मिलियन एकड़ ज़राई रकबा इस मंसूबे से सराब हो सकेगा। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन जो है वो लगाई गई है एंड लगाया जाएगा और हर एक टरबाइन से 375 मेगावाट बिजली हासिल हो जाएगी और टोटल 4500 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोजेक्ट एरिया। अब हम आते हैं सलाइन फीचर ऑफ दयामर बाशा डैम। सो ओके, कैचमेंट एरिया के बारे में पहले हम जानते हैं कि इसका कैचमेंट एरिया जो है वो कितना है। 1,53,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है टोटल कवर्ड एरिया जो डैम का है वो हमारे पास इतना है। ठीक है, मीन इनवल फ्लो जो है इनफ्लो जो है वो 62 BCM है हमारे पास। ठीक है, पोर्टेबल मैक्सिमम फ्लड वो है हमारे पास 4,94,170 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं लोकेशन की तरफ अगेन। इसका लोकेशन जो है वो हमारे पास 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ चिलास। ठीक है, टाइप जो है ये हमारे पास रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। ठीक है, इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट यूज हो गया है और ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ क्रेस्ट लेवल हमारे पास 1170 MSL है और इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो डैम का वो है हमारे पास 272 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रिजर्वायर हमारे पास 102 किलोमीटर है। ठीक है, सरफेस एरिया 115 स्क्वायर किलोमीटर इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं पावर फैसिलिटीज की तरफ। इसमें नंबर ऑफ पावर हाउसेज जो है 2 इसमें पावर हाउसेज जो है वो इंस्टॉल की गई है। उसके साथ साथ इसमें टरबाइन जो है वो 12 टरबाइन जो है वो एडजस्ट की गई है जिसका टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी जो है वो होगा हमारे पास 4500 मेगावाट। ठीक है, ये है इसका सलाइन फीचर ऑफ दयामर बाशा डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक अनदर पिक्चर है डैम का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एरिया है हमारे पास। अच्छा, एनकाउंटर्ड इशू रिलेटेड टू दयामर बाशा डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास डैम होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास इंडस रिवर है, यहाँ पर हमने ये डैम जो है कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास सिस्मिक जोन का प्लान है। ठीक है, कि इसमें जो है हाईली अनस्टेबल सिस्मिक जोन है। तो डैम जो है वो हम ऐसी एरिया पर कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पर सिस्मिक जोन जो है वो हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ पर हम डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब अर्थक्वेक आ जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेव आ जाएगी, तो इसकी वजह से हमारा डैम जो है वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास ये हमारे पास सेजने की फ्रीक्वेंसी का जो डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, साइन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा जो है मैग्मा जो है वो आता है तो वहाँ पर भी हम डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डैम को जो है वो फिर फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन दयामर बाशा डैम प्रोजेक्ट। ठीक है,
एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वो है हमारे पास 33%, अनस्किल्ड वाटर कंस्ट्रक्शन मोस्टली 10.5% है, स्किल्ड वर्कर हमारे पास है 16.6%, गवर्नमेंट सर्विस 19%, बिजनेस हमारे पास 15.5, अदर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास 4.7% है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का क्या मतलब है? स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जो भी बंदा, जो भी लोग जो है वो इस डैम के साथ अटैच है, कोई ना कोई रिलेशन जो है इस डैम के साथ जिन लोगों का है, दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है, उसका घर जो है वो इस एरिया में आता है जहां पर डैम कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो वो भी स्टेक होल्डर है। जिस बंदी ने इस डैम का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है टेंडरिंग में काम किया है, वो भी स्टेक होल्डर में आता है। जो लोग फॉर एग्जांपल जिसका एरिया जो है, जिसका लैंड एग्रीकल्चर लैंड है एक आदमी का, तो वहां पर वाटर टेबल जो है वो अप हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मतलब उसका लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो भी स्टेक होल्डर में आता है। ठीक है, तो इसी तरह उसका शेयर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, ये प्रॉपर परसेंटेज में शो हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। अच्छा, अब हम आते हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स। चाइना जो है वो 70% शेयर दे रहा है, गुलाम रसूल कंपनी जो है वो हमारे पास 30% शेयर दे रहा है। ठीक है, पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना जो है वो 70% शेयर दे रहा है, उसके साथ साथ फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 30% शेयर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दामरबाशा डैम प्रोजेक्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब ये डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए तो पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फवायद होंगी। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द जनरेशन ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी विल हेल्प टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग ट्रिप। ठीक है, हमारे पास इतना ज़्यादा बिजली जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी, तो इसकी वजह से हमारे टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुल्क को बहुत ज़्यादा, कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अल्टीमेटली इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब तेल की बहुत ज़्यादा, ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे ममालिक से हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा होगी, हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी कंस्ट्रक्शन की जितनी भी प्रोजेक्ट है वो बिजली से ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑयल की ज़रूरत फिर नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा इम्पोर्ट लेवल जो है ऑयल का वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारी बिजली का लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जनरेटिंग ऑफ 12.22 बिलियन यूनिट जो है वो पर एनुअल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास 2160 मेगावाट बिजली जो है वो ऐड हो जाएगी हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो फायदा है वो ये है कि हमारे पास लोगों की लिविंग का स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न सिविक फैसिलिटी जो है वो लोगों की रहन सहन वो लिविंग स्टैंडर्ड में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, कि हमारे पास लोकल पीपल जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक और फायदा ये होगा कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल सीमेंट की इंडस्ट्री जो है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतना बड़ा सीमेंट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इसके साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, लोकल एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जितना भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी लेवल है, ठीक है, वो इस डैम की कंस्ट्रक्शन से वो जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसका ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा फायदा ये होगा कि हम डैम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। डैम हम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम की बेसिकली दो फायदे हैं। एक ये है हमारे पास कि जब डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए तो हमारे पास जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। दूसरा फायदा ये है कि हमारे पास मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगा तो उसके साथ साथ हम वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर देगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री विल मेक मोर गुड, मोर प्रोडक्शन। ठीक है,
जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके साथ साथ हम दूसरे ममालिक में हम अपनी गुड जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा कंपटीशन जो है फॉर एग्जांपल चाइना है, इस तरह दूसरे ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुड जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे मुल्क का एक्सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट बेनिफिट वही है हमारे पास कि प्रोजेक्ट विल क्रिएट इनहेंस टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन कोहिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। ये एरिया जो है कोहिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर टूरिज्म का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर टूरिज्म करने के लिए। तो दिस इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पाकिस्तान, कि हमारे पास ये सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस डैम की कंस्ट्रक्शन से हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि इसकी नेगेटिव इफेक्ट ये है, दुनिया में हर चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट की नेगेटिव इफेक्ट की तरफ। हमारे पास 31 विलेजेस जो है वो इफेक्टेड हो जाती है विद कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। इसके साथ साथ हमारे पास 3100 हाउसेज जो है वो इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और उनमें तकरीबन 28,500 लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा 2660 एकड़ एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाती है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर रिजर्वायर हमारे पास जो डैम का अंदर एरिया जो कवर हो जाता है वो है हमारे पास 252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम आते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब ये डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए तो हमारा वेदर पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट पर क्या इफेक्ट होगा, हमारे फिशेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इसके साथ साथ। तो ये चीज़ जो है हमारे पास एनवायरमेंटल प्लान में आता है जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का काम है। ठीक है, तो अच्छा, उसके साथ साथ हम ये भी ख्याल करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडस रिवर है। ठीक है, ये है हमारे पास डैम और बचा डैम प्रोजेक्ट। इंडस रिवर पर इंडिया जो है वो मुसलसल डैम बनाती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन पिछली 25 साल से कोई भी डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका, क्योंकि हमारी हुक्मरान जो है वो माजी में कई और मुश्किलात का सामना हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो डैम कंस्ट्रक्ट न कर सका, और हमारा इकोनॉमी लेवल जो है वो इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिजली का लोड शेडिंग जो है वो हमारा मुकद्दर रहा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकती है, तो फिर वीडियो लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।